My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing some more additional questions from the quantitative skills section of the official mock and math. Start करते हैं session को. So first question, sales commission is calculated based on the selling price of the product as explained below. Subtract $0.01 from the selling price of the product and divide the result by 10. The commission will be 0.5 times the sum of the resulting quotient and 1. If a person receives a commission of $6.50 on selling two products, what would be the selling price of each of the two products? ठीक है, पहले तो वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो, then watch the solution. So the question is saying sales commission is calculated based on the given parameters, and first we have to subtract $0.01. Now $0.01 is very negligible, बहुत छोटा वैल्यू है, but why is this being subtracted from the selling price? And then ठीक है, let us say selling price is S, so we are subtracting $0.01, so S minus 0.01 will be the result, and then we divide the result by 10. Question is saying commission will be 0.5 times 0.5 times, यानी कि half होगा 0.5 times, which is half the sum of resulting quotient and 1. Sum of the resulting quotient and 1. So quotient of this division, ठीक है, so quotient will be integral value, integer value होगा, so greatest integer part हो गया, that will be quotient, okay, plus 1, and finally this is divided by 2 or multiplied by 1 by 2. So this is our sales commission, okay, this is equal to commission. Now first of all, let's make it a bit simpler. What is the relevance of 0.01? So let us say our sales commission is total selling price is selling price, S is selling price, so selling price is equal to $10. So if selling price is $10, so 10 minus 0.01, this becomes equal to 9.99. Now if you divide 9.99 by 10, the quotient will be 0. Quotient 0 आ जाएगा इस केस में, इंटीग्रल पार्ट विल बी 0, और ये फर्क पड़ेगा हमारा 0.01 सब्ट्रैक्ट करने से. सो इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 0.01 फ्रॉम अ मल्टीपल ऑफ 10, तब क्वोशिएंट हमारा 1 से डिक्रीज कर जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 0.01. अगर 10 के मल्टीपल से डिक्रीज नहीं कर रहे हो, लेट अस से आवर सेल्स प्राइस वाज ऑलरेडी 11, सो 11 माइनस 0.01, this will be 10.99. So 10.99 divided by 10 will give you quotient equal to 1. Integral part will be equal to 1. Or 11 divided by 10, then will also be integral part equal to 1. तो कोई change नहीं आएगा. The only change will be there if our selling price is a multiple of 10. ठीक है, 10 से 10.01 या multiple of 10 plus 0.01 होगा, तो in that case फर्क पड़ेगा. प्लस 0.01 होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो हमें बस ये देखना है कि क्या मल्टीपल ऑफ 10 होगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है. अगर वो है तभी कंसर्न है हमारा 0.01, अदरवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जितने भी ऑप्शंस गिवन है, फॉर ऑल द ऑप्शंस द सेलिंग प्राइस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, सो दिस वैल्यू इज नॉट रेलेवेंट. सो बेसिकली हमें स्ट्रेट अवे क्या करना है, वी स्ट्रेट अवे हैव टू डू s by 10 इंटीग्रल पार्ट प्लस 1 into 1 by 2. Okay, and question is saying person receives a commission of $6.50 on selling two products, so what would be the selling price? Okay, तो फर्स्ट केस में $41 by 10, इंटीग्रल पार्ट विल बी 4, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट विल बी 4 प्लस 1 by 41 करोगे, 41 by 10, इंटीग्रल पार्ट विल बी 4 प्लस 1 into 1 by 2, तो 4 plus 1 into 1 by 2, that will be 2.5. या फिर स्ट्रेट अवे कर सकते हो, इसको और सिंपल बनाना है, सो हम और थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं इसको, इक्वेशन को, ठीक है. दिस कैन डायरेक्टली बी रिटन एज इक्वल टू 1 by 2 times s by 10 plus 1 by 2. Okay, so for 41 this will become 41 by 10, 4 by 2, 2 plus 0.5, so this will be 2.5. commission for this product will be 2.5, and for $62 selling price, 62 by 10, 6 by 2, 3 plus 0.5, 3.5, तो 2.5 plus 3.5 total commission will be 6, so A will not be the answer, क्योंकि हमें चाहिए टोटल कमीशन 6.5. B में भी क्योंकि 44 है, अगेन यहां भी रिजल्ट वही आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 2.5, 3.5, यहां भी कमीशन विल बी 6 ओनली, बिकॉज 41 हो, 42 हो, 43 हो, 41 से लेकर 49 तक, फॉर ऑल दीज केसेस कमीशन विल बी 2.5 ओनली. इज दैट सो? 61 से 69 तक कमीशन विल बी 3.5 ओनली. ओके, 48 के लिए भी कमीशन 2.5 रहेगा, 72 के लिए हो जाएगा 4, तो 2.5 प्लस 4, दिस विल बी 6.5.
तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ऑप्शन डी में क्या होगा, 49 के लिए भी कमीशन होगा 2.5, 82 के लिए हो जाएगा 4.5, तो 2.5 प्लस 4.5 दिस विल बी इक्वल टू 7. एंड फॉर 56 द कमीशन विल बी 49 के लिए था 2.5, 56 के लिए हो जाएगा 3, 102 के लिए दिस विल बी 10/2, 5.5, 3 प्लस 5.5, 8.5 विल बी द कमीशन. ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर. क्या ये क्लियर है? तो दिस वॉज स्लाइटली अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट अप्रोच समझ में आया होगा कि हमें क्वेश्चन में दी हुई छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे यूज करना है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, an article if sold at a discount of 30% results in a loss of $35 if sold at a discount of 30%. 30% discount यानी कि 70% of the mark price पे if you are selling the article, so there is a loss of $35 which implies the cost price say this is $35 less. So if the article is sold at a discount of 10% which is 90% of the mark price, in that case there is a profit of $5. So between 70% of the mark price and 90% of the mark price, the difference is 20% of the mark price, and that difference is $35 plus $5, क्योंकि $35 का लॉस है फर्स्ट केस में, $5 का प्रॉफिट है सेकंड केस में. 20% of mark price is equal to $40. So mark price will be equal to 20% is 1/5, तो $40 into 5, $200. Question is asking what would be the profit or loss if it was sold without any discount. So if it was sold at the mark price, यानी कि this becomes the selling price as well, then what will be the profit or the loss. Cost price कितना है हमारा, 90% पे सेल कर रहे हो तो $5 का प्रॉफिट हो रहा है, और 90% विल बी $180. सो $5 का प्रॉफिट है यहाँ पे. कॉस्ट प्राइस विल बी $175. कॉस्ट प्राइस इज $175 और सेलिंग प्राइस इज $200. सो $25 का प्रॉफिट होगा, बट परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 25/175 प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 1/7 which will be 14.28%. Option C. Option D 14.3%. Okay, ठीक है, 14.3% will be the answer. Clear? Next question. Kate wants to hang one curtain on each of the 7 windows. She has a total of 12 curtains available, 4 identical curtains each of red, blue and yellow color. Using only the available curtains, how many different ways can she hang the curtains on the 7 windows such that for each color at least 2 curtains of that color are hung? For each color at least 2 curtains of that color are hung. यानी कि हर एक कलर के हमें 2-2 curtains तो पक्के से सेलेक्ट करने हैं, मिनिमम 2. Note, 2 ways of hanging the colors are different if and only if at least one of the corresponding windows has a different color, curtain color. Okay, so 2 ways are different if and only if at least one of the corresponding windows has a different curtain color. Okay, तो अगर सारे के सारे विंडोज पे सेम कॉम्बिनेशन कलर पड़ा हुआ है इन दैट ऑर्डर, तो फिर तो सेम ही होगा. ओके, ठीक है. साथ में क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल कर्टेंस, यानी कि रेड कलर के सारे कर्टेंस आइडेंटिकल हैं, ब्लू कलर के सारे कर्टेंस आइडेंटिकल हैं, येलो कलर के सारे कर्टेंस आइडेंटिकल हैं, विच इंप्लाइज कि इफ यू हैव 4 कर्टेंस ऑफ रेड कलर, सो ऑल 4 कर्टेंस आर एग्जैक्टली द सेम. Exactly the same. There is no difference between them. So if you are selecting first 2, it is same as selecting second and third, or same as selecting second and fourth. So if you are selecting any 2 red color curtains, so number of ways is only 1. कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो because all of them are identical. क्या ये क्लियर है? डिफरेंट होते तो मामला बदल जाता है, बट यहाँ पे आइडेंटिकल है. डिफरेंट होते नंबर ऑफ वेज होते हमारे 2 कर्टेन सेलेक्ट करने के आउट ऑफ 4 विल बी 4C2, बट सेम में से 2 सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होगा बिकॉज ऑल 4 आर एग्जैक्टली द सेम. एग्जैक्टली द सेम. तो तुम्हें कौन सा सेलेक्ट किया है पता कैसे करोगे? ऑल सेलेक्शंस विल बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. और क्वेश्चन में ये कह रहा है टोटल 7 कर्टेन्स हमें सेलेक्ट करने हैं, 7 कर्टेन्स. नाउ टू दीज 7 कर्टेन्स, 7 विल बी 2 + 2 + 3 बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट एट लीस्ट 2 कर्टेन्स ऑफ द ईच कलर. तो तीनों कलर्स के कम से कम 2 कर्टेन सेलेक्ट करोगे और फिर एक कर्टेन कोई होगा किसी एक कलर का जो कि एडिशनल हो जाएगा. तो दैट इज वाई 2 + 2 + 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा. अब या तो तुमने 2 कर्टेन सेलेक्ट किए होंगे रेड के, ब्लू के, और 3 हो जाएंगे येलो के, या फिर रेड का और येलो के 2 होंगे, ब्लू के हो जाएंगे 3, या फिर येलो के और ब्लू के होंगे 2 और रेड के हो जाएंगे 3. तो 3 केसेस होंगे ओनली. इजंट इट सो? टोटल 3 केसेस होंगे और सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा बिकॉज सारे के सारे कर्टेन्स एक कलर के सेम ही हैं, एग्जैक्टली सेम है. तो 3 वेज हो गए. अब तुमने किसी एक वे से कर्टेन्स को सेलेक्ट कर लिया, टोटल कर्टेन्स हो गए 7. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इन ऑफ कर्टेन्स ऑन 7 विंडोज विल बी 7 फैक्टोरियल. फिर कौन सा कर्टेन कहां पे लगाओगे, 7 फैक्टोरियल हो गया. बट आउट ऑफ दीज 7, 2 आर ऑफ 1 कलर
2 more are of the second color and 3 are of the third color, है कि नहीं? तो 2 ये जो कर्टेन सेम कलर के हैं, लेट अस से दैट इज रेड, तो इनका अरेंजमेंट तो सेम ही रहेगा। 2 ये जो लेट अस से ब्लू कलर के हैं, इनका अरेंजमेंट भी सेम ही रहेगा, और ये जो 3 है हमारे येलो कलर्स के, इनका भी अरेंजमेंट सेम ही रहेगा। So this will be number of ways for one selection. Total selection है 3, तो 3 multiplied by this will be the answer. क्या ये समझ पा रहे हो? ऐसे समझो, लेट अस से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, या एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेट अस से वी हैव 7 विंडोज है टोटल। ओके, लेट अस से फर्स्ट पीरियड था, फोर्थ पीरियड था, ओके, R1 एंड R2, और ब्लू था हमारा यहाँ पे और यहाँ पे, और बाकी 3 पे येलो कलर था। येलो नज़र तो नहीं आएगा, येलो को कलर को डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है, बाकी पे येलो था। तो नाउ लेट अस से you've changed red 1 and red 2 by each other, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, सेम फॉर द ब्लू, सेम फॉर द येलो। ओके, सो दीज विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो 4 से 4 गया, 6 इंटू 5 30 इंटू 7 210 इंटू 3 630 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the probability that in a random arrangement of the letters of the word management 2 A's are always together. Now you might be wondering why is the spelling of management missing 1 E, but this was the official mock question, ठीक है, तो वहां पे भी स्पेलिंग में E मिसिंग था, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज नॉट अ वर्बल क्वेश्चन, सो दैट इज फाइन, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो probability that in a random arrangement of the letters 2 A's always come together. So management has 1 2 3 4, this is spelling of management has 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 letters are there. Out of these 9 there are 2 M's, 2 N's, 2 A's, और बाकी अपना क्या बचा? M N A G E N T are 1 only, ठीक है। So 2 A's are always together, so 2 A को क्लब कर दो, make 1 set only। टोटल 9 letters थे, अब 8 set हो गए, 2 A's, 2 separate M's, 2 separate N's, then 1 G, 1 E, 1 T, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 8 सेट्स हो गए। अरेंज करने के तरीके हो गए 8 फैक्टोरियल, ओके, 8 फैक्टोरियल हो गए, और सिंस 2 M's आर एग्जैक्टली सेम, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 N's आर एग्जैक्टली सेम, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, बाकी तो सब 1 1 है। 2 A's आर ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, बट उनको तो हमने एक ही ग्रुप माना है, एक ही ग्रुप माना है, इजंट इट सो, ठीक है, तो उनको अरेंज करने तो वैसे भी एक ही तरीका है। सो दिस विल बी फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, बट सिंस प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज नहीं पूछ रहा है, तो टोटल वेज में से डिवाइड करोगे भाई, फेवरेबल वेज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। सो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 9 लेटर्स है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 A's, 2 M's, 2 N's, ओके। सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, बचने वाला है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल था, तो ये हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल से नीचे क्या है? 9 फैक्टोरियल इज 8 फैक्टोरियल इंटू 9, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, 2 बाई 9 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ओके, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब इसी सेम चीज को करने का एक और अप्रोच है, उसको भी समझते हैं। देखो, हमें 2 A's को ऑलवेज टुगेदर लाना है। इन जनरल अगर हम प्लेस करते, टोटल लेटर्स है हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो वी हैव टू प्लेस 2 A's, ठीक है, वी हैव टू प्लेस 2 A's। सबसे पहले A's को ही प्लेस कर दो, सो नंबर ऑफ A's है 2 और टोटल प्लेसेस हमारे पास 9, सेलेक्ट 2 प्लेसेस आउट ऑफ 9, 9C2 विल बी नंबर ऑफ A's, isn't it so? अब यहां पे तो इस केस में तो कहीं पे भी A आ सकते हैं, वी माइट हैव सेलेक्टेड दीस 2 प्लेसेस, तो साथ में तो नहीं है, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता था कि हमने इन दोनों कॉन्सेक्यूटिव को सिलेक्ट कर लिया तो साथ में हो जाते। तो कुछ केसेस में
टू एज विल बी टुगेदर, इन सम केसेस दे विल नॉट बी टुगेदर। टोटल केसेस हमें मिल जाएंगे 9c2 से ए को प्लेस करने के, और बाकी अल्फाबेट्स को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज सेम ही रहेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो उनके लिए कंसर्न नहीं करना है, वी हैव टू फोकस ऑन टू एज। तो टू एज को प्लेस करने के टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 9c2। ओके, बट इफ वी हैव टू प्लेस ऑल द टू एज, बोथ द टू एज टुगेदर, इन दैट केस दोनों को एक साथ रखो फिर। ठीक है, फिर दोनों को एक साथ रखो, तो बोथ टू एज कैन बी प्लेस्ड एट द फर्स्ट टू प्लेसेस, और सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस, और थर्ड एंड फोर्थ, और फोर्थ एंड फिफ्थ, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और सिक्स्थ एंड सेवंथ, और सेवंथ एंड एट्थ, और एट्थ एंड नाइन्थ। टोटल कितने प्लेसेस हो गए? 1 2, टोटल 9 है, 9 - 1 8, 8 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो 8 विल बी फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस हो गए 9c2, 8 आर फेवरेबल, तो 8 by 9c2, दिस विल द प्रोबेबिलिटी। सो दिस विल बी 8 upon 9 into 8 by 2, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 2 by 9। क्या ये मेथड अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, आंसर विल बी 2 by 9 ऑब्वियसली। क्या ये मेथड क्लियर हो रहा है? तो ऐसे भी सोच सकते थे। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability that a child will be allowed to eat a chocolate bar is 2 by 5, and the probability that the child will be allowed to eat an ice cream cone is 7 by 25. If these events are mutually exclusive, then what is the probability that the child will be allowed to eat a chocolate bar or an ice cream cone? Now the question is saying mutually exclusive. The events are mutually exclusive. Mutually exclusive, which implies that both events cannot occur together. Both can't occur together. That is why they are called mutually exclusive. So there are events A and B, let us say, and events A and B are mutually exclusive. Mutually exclusive. So that implies that probability of both occurring together, A intersection B, this is equal to 0. So in general, probability of A union B, or union implies that A or B, ठीक है, जो कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा ही, child will be allowed to eat a chocolate bar or an ice cream cone. So probability of A union B, this is equal to probability of A occurrence plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है, but if the events are mutually exclusive, if events are mutually exclusive, so this becomes 0. So directly हमारा probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B. ठीक है, this is only if A and B are mutually exclusive. Otherwise पूरा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, so in this case, since events are mutually exclusive, तो probability हो जाएगा हमारा, ऐड कर दोगे 2 by 5 plus 7 by 25, तो 2 by 5 plus 7 by 25, तो 10 plus 7, 17 by 25 will be the answer. Option E. Option E will be the answer. Okay. Clear? Next question. The digital sum of a number is obtained by adding all the digits of a number until a single digit is obtained. So what is the digital sum of 19 to the power 100? Now digital sum of any number is basically sum of digits till we obtain a single digit. ठीक है, so in general digital sum is basically remainder when we are dividing the sum of digits by 9. Okay, ठीक है, so digital sum is the remainder when we are dividing sum of digits by 9. और अगर 9 से divisible होगा तो फिर remainder हमारा तो नहीं, उस केस में the sum of digits digital sum will be equal to 9. Okay, तो digital sum हमारा क्या आ जाएगा? 19 to the power 100. 19 is 18 plus 1 to the power 100. And if you are dividing this by 9, remainder will be equal to 1. तो digital sum will also be equal to 1. ठीक है, अगर कोई नंबर हमारा 9 का मल्टीपल है तो उस केस में digital sum will always be equal to 9. Otherwise, for any number, any other number, digital sum will be the remainder when we are dividing by 9. Okay, so in this case, this will be remainder which is equal to 1. Next question. What is the value of the following expression 2 to the power log of 2 to the power log of 2 to the power log of 2 till infinity? तो एक्सप्रेशन हमारा है 2 to the power log of 2 to the power log of 2. अब ये पावर किसका है? 2 का लॉग, 2 का पावर है, log 2 का पावर नहीं है, 2 का पावर है. ठीक है, log 2 and so on till infinity. So in any such case हमारा नंबर है 2 to the power log 2 और वहां पे 2 का पावर अपना and so on. ठीक है, so focus on this part. This part. Okay, so isn't this same as the initial value?
यानी कि इफ इनिशियल वैल्यू दिस इज इक्वल टू एक्स, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स, ये भी तो इक्वल टू एक्स होगा, दिस इज ऑल्सो एक्स. सो नंबर हमारा बन जाएगा 2 to the power of log of x, this is equal to x. Take log of this value. So log of 2 to the power log x, यानी कि this will be log x times log of 2. This is equal to log x. बोथ साइड्स में हमने log ले लिया, तो log of a to the power n is equal to n times log of a. तो that is why log x हमारा पावर से बाहर आ गया. log x into log 2 is equal to log x. So log x को कॉमन ले लिया और log x को भी राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, तो log 2 minus 1 this is equal to 0. Okay, now log 2 minus 1 this is not equal to 0 because log of 1 is equal to 0, log of 2 is not equal to 0. Okay, so log 2 minus 1 is not, sorry, log 2 is not equal to 1. log 1 तो 0 होता है, वो तो ठीक है, बट log 2 minus 1 क्या होगा? log 2 is not equal to 1 बिकॉज बेस यहाँ पे क्या है, बेस हमने 2 तो माना नहीं है, बेस तो इन जनरल अगर मेंशन नहीं है तो 10 माना जाएगा. सो इन दैट केस log 2 is not equal to 1, so log 2 minus 1 is non-zero, so definitely log of x must be 0. And if log of something is 0, so that implies that that something must be equal to 1 because log of 1 is equal to 0. Okay, so x must be equal to 1. Option C must be the answer. Clear है? Okay, ठीक है. Next question. A warehouse stores 345 liters of HCl, 120 liters of H2SO4 and 225 liters of NH3. So what is the biggest size of the casks in which the acids can be stored? Biggest size चाहिए of the casks in which acids can be stored, और सारे के सारे acids को separately store करोगे, ठीक है. So 345 liters HCl है, 120 liters H2SO4 है, 225 liters है NH3, और हमें चाहिए साइज लार्जेस्ट कास्ट का, बट डेफिनेटली दे विल बी स्मॉलर देन द गिवन वैल्यूज, गिवन वॉल्यूम्स, ठीक है. सो दिस विल बी बिगेस्ट साइज विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज गिवन वॉल्यूम्स. तो HCF ऑफ 345, 120 एंड 225 क्या वैल्यू आ जाएगा? HCF विल बी 345, 120 और 225 का HCF क्या आएगा? 45 तो नहीं होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है. 15 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नीरज acquired a gold loan for rupees 7,000 at simple interest of 9% per annum from MPM Gold Loan Company by depositing 10 grams of gold. At the end of the 36th month, he borrowed rupees 3,000. Additionally, 8 years after the initial borrowing, Neeraj had not paid a single rupee of either interest or the principal. The loan recovery team came to his house. घर पे आई, घर पे आके प्यार से बोला, settle the entire amount, and he settled the entire amount with an amount of rupees 14615. Now loan recovery team thought they won. Neeraj thought I won. क्यों? वो भी समझ में आ जाएगा. Find whether Neeraj paid more interest or less than his initial contract had stated and by what percentage points. Now there is a difference between percentage and percentage points. यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहा है परसेंटेज पॉइंट्स यानी कि एब्सोल्यूट परसेंटेज की, ठीक है. डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. सो टोटल उसको कितना पेमेंट ड्यू था, उसको कितना पे करना था पहले, तो वो कैलकुलेट करते हैं. पे कितना किया है तो पता है, रुपीज 14615 पे किया है अल्टीमेटली. ओके, सो नीरज एक्वायर्ड अ गोल्ड लोन ऑफ रुपीज 7,000. तो रुपीज 7,000 का लोन था, 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड he paid the amount 14615 after how much time? After 8 years. 8 years. So 8 years में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 9% per annum into 8 years. So 9 into 8, 72% of 7,000. ठीक है, 7,000 का 72%, तो 7,000 तो पे करना ही था, करना प्रिंसिपल है तो, प्लस इंटरेस्ट विल बी 72% ऑफ 7,000. 1% इज 70, 70 into 72, दिस विल बी 5040 रुपीज. ठीक है, 70 into 72 because 72% पे करना है ना, 70 into 72 because 1% is 70, 5040. So this is amount due because of initial 7,000 rupees. Okay, then he borrowed 3,000 rupees more at the end of 36 months, यानी कि after 3 years. टोटल 8 years के बाद में पे किया है, 3 years के बाद में अमाउंट लिया है 3,000 का. So on this rupees 3,000, interest still 9% per annum और सिंपल इंटरेस्ट है, एंड 5 years के बाद में अमाउंट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट विल बी 9 into 5, 45%, 1% इज 30, तो 30 into 45, दिस विल बी 1350 रुपीज, और 3,000 जो प्रिंसिपल है वो तो पे करना ही करना है.
So total amount that is due will be 7,000 plus 5040, that is 12040, और this amount is 4350. Total amount होगा 16,390. 16,390 was the amount that was to be paid, and he paid only 14615. So Neeraj actually paid less, that is for sure. तो ऑप्शन डी तो आंसर नहीं है, ऑप्शन ई भी आंसर नहीं है. अब कितना परसेंट लेस पे किया है ये हमें कैलकुलेट करना है. तो कितना लेस पे किया है? 16390 was the amount to be paid, and this is actual payment. Okay, so the difference is 1775 rupees. Okay, total interest that was to be paid was how much? 9%. 9% interest was to be paid. So the interest was 5040 plus 1350. ठीक है, so 9% per annum से total interest to be paid was 5040 plus 1350, यानी कि this is 5 plus 3, 5,000 plus 1,000, 6,390 rupees. But actual payment that he made was 4615 rupees. Isn't it so? 9% के कैलकुलेशन से पेमेंट वॉज 6390 रुपीज, क्योंकि प्रिंसिपल तो पूरा ही पे करना था. इंटरेस्ट कितना बना उसका? 4615 सिर्फ पे किया उसने. Isn't it so? तो कितना लेस पे किया उसने? 9% पर annum इंटरेस्ट बनता है 6390, तो 1% कितना हुआ? 1% विल बी 710 रुपीज. इफ 9% इंटरेस्ट कैलकुलेशन से, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेशन टोटल पेमेंट हो रहा है 6390, तो 1% से हो जाएगा 710 रुपीज, और उसने 1775 रुपीज लेस पे किया है. तो कितना परसेंट कम पे किया है? 1775 डिवाइड बाई 710, so that will be 2.5% लेस पे किया है. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, इसी सेम चीज को. देखो ऐसे समझो कि 7,000 रुपीज ही हैड टू पे एट द रेट ऑफ R%, मान लेते हैं R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस ही अमाउंट ही पेड आफ्टर 8 years. तो 8 years में अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी 8R% ऑफ 7,000. ठीक है, 1% इज 70, तो 70 इंटू 8R, दिस विल बी अमाउंट ड्यू. ओके, 3,000 रुपीज he borrowed after 3 years, तो he has to pay R% rate of interest, simple interest, और 5 years के बाद में पे किया है तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 1% is 30, 30 into 5R, so total interest will be 560R plus 150R, 710R. Principal is 7,000 plus 3,000, 10,000, so 10,000 plus 710R, this is equal to 14615 rupees. So 710R is equal to 4615. ओके, अब 71 से अगर ये सिंपली कैंसिल आउट हो रहा है तो यहां बचेगा 10, 7 6 426, और फिर बचेगा 315, तो दिस बिकम्स 65. सो R इज इक्वल टू 6.5% पर एनम. Rate of interest becomes 6.5% per annum, but actual interest that he had to pay was 9% per annum, and he has only paid 6.5%, so he has paid 2.5% less. बिकॉज हमें क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज पॉइंट्स के टर्म्स में. ठीक है, सो 9% वॉज द एक्चुअल इंटरेस्ट, ही पेड 6.5%, दैट इज 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स लेस. ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में पूछता तो परसेंटेज टर्म्स में तो हमें कैलकुलेट करने में 9% पे करना था, पे किया 6.5%, 2.5% कम पे किया, बेस हमारा 9% है, तो 2.5 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट वुड हैव बीन परसेंटेज कैलकुलेशन. ठीक है, बट क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज पॉइंट्स के टर्म्स में, एंड दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस. 9 माइनस 6.5 दैट इज 2.5. ओके, ठीक है, तो ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज एंड परसेंटेज पॉइंट्स. ओके, अगर क्वेश्चन पूछता ओनली परसेंटेज बाय व्हाट परसेंटेज, तो डिफरेंस होता हमारा 2.5 कम पे किया है और बेस था 9, 2.5 बाय 9 इंटू 100, सो 250 बाय 9% होता. बट सिंस दिस इज परसेंटेज पॉइंट्स, दैट इज वाई डिफरेंस इज 2.5% लेस. ओके, next question. Which of the following exactly divides x, where x is the sum of first 15 prime numbers? Sum of first 15 prime numbers. First 15 prime numbers क्या होंगे? 2, 3, 5,
7 11, 50 तक के सारे प्राइम्स होंगे, 2 3 5 7 11, 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। सम क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 5 10 18 28 प्लस दिस इज 30 40 49 52 72 एंड 29, तो दिस इज 101 प्लस 68 109 152 199, तो 328 हो गया सम। टोटल सम इज 328। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिवाइड्स x, और x इज इक्वल टू 328। सो 11 का मल्टीपल तो नहीं है, 8 का मल्टीपल है, 8 इंटू 41 है, 8 इंटू 41, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी 41। ओके ठीक है, रॉ कैलकुलेशन था और कुछ तो इसमें दिमाग लगाना नहीं था। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the equation y square minus py plus q if the roots of the given quadratic equation are a and b, find the equation whose roots are ab plus a plus b and ab minus a minus b। तो इक्वेशन है हमारा y square minus py plus q, this is equal to 0, and if this is the equation, तो sum of roots क्या आ जाएगा, a and b roots हैं तो a plus b, sum of roots क्या आ जाएगा, that is equal to p, and product of roots क्या आ जाएगा, that will be equal to q, या फिर 1 कोफिशिएंट था हमारा वाई स्क्वायर का, तो p बाई 1 है, p बाई 1 है, तो क्लियरली p है, ठीक है, और प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा a इंटू बी विच इज इक्वल टू q। सो a प्लस बी एंड ab आर नोन नाउ, एंड क्वेश्चन आस्किंग द इक्वेशन हुज रूट्स आर ab प्लस a प्लस b एंड ab माइनस a माइनस b। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन विल बी ab प्लस a प्लस b प्लस ab माइनस a माइनस b। सो a प्लस b और a माइनस b ये तो कैंसिल आउट हो गया, a प्लस b बोथ साइड से, 2ab बच गया, sum is 2ab which is equal to 2q, तो 2q should be the coefficient for the sum, ठीक है। so y square minus 2qy should be the first two terms, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आ रहे हैं लास्ट इक्वेशन में, और तो कहीं पे आ नहीं रहे, बट फिर भी एक बार कैलकुलेट कर देते हैं बाकी चीज़ों को भी, जस्ट इन केस अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो किसी केस में। यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, बट आंसर ऑप्शन ई दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। बट किसी और क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है सिर्फ इतने से काम नहीं चल जाएगा, डिपेंड करता है, हो सकता है बाद में कहीं पर फ्रैक्शन में आ रहा हो, कुछ चीज़ें करके हमारा जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है। बट अगर चेंज होगा तो वाई स्क्वायर में भी तो टर्म आएगा ना, ये भी तो बदलेगा, यहाँ भी तो कुछ बदलेगा, तो इस क्वेश्चन में तो आंसर ऑप्शन ई ही रहेगा, पक्की बात है, ठीक है। फिर भी अगर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट विल बी ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी माइनस ए माइनस बी, यानी कि ए बी प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी माइनस ए प्लस बी। तो दिस विल बी ए बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो यस ऑब्वियसली ऑप्शन ई इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट यूज्ड अ फॉल्टी मेजरिंग टेप, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। Faulty measuring tape that incorrectly assigned L as the length of a certain object. The student was later told that the tape always assigns lengths that are x% greater than the actual lengths. So the length assigned is L and this L must be x% greater than the actual length. ठीक है, so if L is x% greater than the actual length, x% ज्यादा है, which implies कि this must be 100 plus x by 100 times actual length, ये L होगा, ठीक है। इफ ए इज द एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ क्या आ जाएगा, L इंटू 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। ओके, द स्टूडेंट अटेम्प्टेड टू डिटरमाइन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय रिड्यूसिंग L बाई y%। सो व्हाट ही डिड, ही रिड्यूस्ड L बाई y%, यानी कि y% रिड्यूस किया तो L इंटू 100 माइनस y बाई 100 कर दिया टू डिटरमाइन द एक्चुअल लेंथ। बट हुआ क्या, इंस्टेड हाउएवर आफ्टर दिस करेक्टिव अटेम्प्ट the value obtained was z% less than the actual length. So after this corrective attempt, the value obtained was not actual length but z% less than the actual length. तो actual length तो हमने निकाल लिया, this is the actual length. तो L into 100 upon 100 minus x, 100 plus x, sorry. But value obtained is z% less, यानी कि value obtained is this value का 100 minus z%. तो 100 minus z upon 100. Okay. ठीक है, L से L हो जाएगा कैंसिल। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सो Z हमारा आ रहा है लास्ट टर्म में, बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड में लेके चले जाओ, तो 100 माइनस Z बाई 100
अच्छा 100 से 100 भी कैंसिल आउट कर ही दो, तो 100 माइनस z विल बी इक्वल टू 100 माइनस y into 100 plus x divided by 100. So z will be equal to 100 minus y into 100 plus x divided by 100. This will be the answer. 100 minus y into 100 plus x. So this is option number C. Okay. ठीक है, वैल्यूज भी पुट करने की कोशिश करोगे एक्स वाई जेड की जगह, तो भी ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. दैट इज वाई इसको ऐसे ही करना विल बी बेटर अप्रोच. ओके, ठीक है. Next question. Bridge entered into a partnership with Harish and they invested money in the ratio 9:7. So Bridge and Harish entered into a partnership and they invested money in the ratio 9:7. Bridge invested money for a certain number of months. कितने months नहीं पता. Harish withdrew his capital after 8 months. So Harish has invested the money. ठीक है, investment and time. Time is 8 months for Harish और हमें नहीं पता Bridge के लिए time क्या है. Let us say X months मान लेते हैं. At the end of the year, Bridge and Harish received profits in the ratio 9:8. So profit is in terms of profit का distribution किस ratio में होगा? Investment into time. तो investment into time का ratio क्या आ रहा है? 9:8 आ रहा है. 9:8 आ रहा है. ठीक है, और रेशियो होना क्या चाहिए? 9x:56. यही तो होना चाहिए. ठीक है, तो 9x/56 दिस इज इक्वल टू 9/8. 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 बचा 7, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया यहाँ से, which implied that Bridge invested the amount for 7 months. Then Bridge then joined Raman's business. Okay, तो ब्रिज ने यहां से पैसा निकाल के रमन का बिजनेस ज्वाइन किया. रमन स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹4,500 एंड ब्रिज ज्वाइंड हिम लेटर एंड इन्वेस्टेड ₹3,000. तो रमन ने इन्वेस्ट किया है 4,500, ब्रिज ने इन्वेस्ट किया है 3,000. रेशियो क्या आ रहा है? 4,500:3,000 यानी 45:30, 3:2. तो रमन एंड ब्रिज का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:2. एट द एंड ऑफ द ईयर रमन एंड ब्रिज डिवाइडेड द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. और रमन ने स्टार्ट किया था बिजनेस, ब्रिज ने बाद में ज्वाइन किया था. ठीक है, सो रमन ने तो पूरे 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया है. ब्रिज ने मान लिया y मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ प्रॉफिट का? 2:1. अगेन प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो I into T, यानी कि 3 into 12, 36/2y. दिस इज 2/1. तो 18 is equal to 2y, y is equal to 9 आ गया. x is equal to 7, y is equal to 9. क्वेश्चन पूछ रहा है what was the difference between the number of months for which Bridge capital was used in the partnership with Raman and the number of months for which Bridge capital was used in the partnership with Harish. तो 7 और 9 का डिफरेंस पूछ रहा है. आंसर विल बी 2 months. Okay, 2 months will be the answer. Next question. Chris and David began working at a certain company and have annual salaries of $12,000 and $18,000 respectively. If it is assumed that Chris and David's salary will increase each year by 20% and 10% respectively from the previous year, then what is the least number of years after which Chris' salary will be greater than David's salary? Every year Chris का salary already start with Chris का salary is less than David का salary, but increment in Chris' salary is 20%, in David's salary is 10%, तो increment Chris को ज्यादा मिल रहा है. So after some time what will happen that the salary of Chris will be greater than David. Question यही पूछ रहा है exactly कितने टाइम के बाद में ये होगा. Exactly what will be least number of years after which Chris' salary will be greater than David's salary. अब यहाँ पे स्टार्टिंग जो अमाउंट है उनका रेशियो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल अमाउंट यहाँ भी 12,000 18,000 दिया है, तो दैट इज नॉट सच कम्बरसम कैलकुलेशन. बट लेट अस से अगर अमाउंट हमें बहुत टिपिकल वैल्यूज दिया होता है तो हम तब भी हम सिर्फ रेशियो लेते हैं और रेशियो से डिटरमाइन कर लेते हैं कि इतने साल के बाद में ये चीज होने वाली है. ओके, ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्योंकि 12,000 18,000 का रेशियो क्या है? 2:3 का रेशियो है, तो या तो 2 और 3 एज्यूम कर लो, या यही वैल्यू से कंटिन्यू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत टिपिकल वैल्यूज नहीं है. या 2,000 3,000 मान लो. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस से 2,000 और 3,000 मान लेते हैं. आई रिपीट, तुम ये वैल्यूज के साथ में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक एडिशनल 6 है तो मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं. तो सी एंड डी आर द पर्संस. ओके, एंड ईच ईयर देयर सैलरीज आर इंक्रीजिंग by 20% and 10% respectively. Salary of Chris is increasing by 20% and salary of David is increasing by 10%. Okay,
सो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 20% ऑफ 2000 विल बी 400, 2400 हो जाएगा. 10% ऑफ 3000 विल बी 300, 3300 हो जाएगा. सेकेंड ईयर 20% ऑफ 2400, 10% है 240, 10% निकाल के डबल कर दो 480, 2400 प्लस 480 2880 हो जाएगा. 3300, 10% 330, 3630 हो जाएगा. थर्ड ईयर 20% ऑफ दिस वैल्यू 10% होगा 288, 20% हो जाएगा 576. थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है. 576 500 ऐड कर दोगे 3380, 76 3456 हो जाएगा. यहाँ पे 10% 363, तो दिस विल बी 3630 था, 300 और करिए 3930 प्लस 3993 हो गया. ओके, फोर्थ ईयर में क्या होगा, डिफरेंस देखो, पहले इनिशियली 1000 था, 1000 था, नाउ द डिफरेंस इज 900, देन डिफरेंस बिकम्स कितना 2880 3630, तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा, डिफरेंस आ गया हमारा 120 प्लस 630, तो 750 का डिफरेंस आ गया. बट देयर इज नो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, आई मीन तुम यहां से डिफरेंस से काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट डिफरेंस कम होता जा रहा है लगातार. तो नाउ दिस इज 456 प्लस 7 453. नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 3456 प्लस 20%, 20% विल बी 345, 690 हो जाएगा, 691, तो ऑलमोस्ट 700 ऐड कर दो, तो 4147, 691 ऐड कर दिया, ठीक है. सो दिस विल बी द वैल्यू. ओके, और यहां पे ऐड होगा 10% विच इज 400 ऑलमोस्ट, तो 3993 विच इज ऑलमोस्ट 4000 प्लस 400, तो 4400 हो जाएगा. 7-8 कम करना है तो कम भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट उतना 7-8 रुपीज़ का डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए. इसके बाद बड़ा डिफरेंस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 20% ऑफ 4147 दैट विल बी 83 830, तो दिस विल बी 4980 ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आएगा 10%, सो दैट विल बी 440, सो 4840. सो नाउ दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है, और देयर इज अ सफिशिएंट डिफरेंस, 100 प्लस का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली 5 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. हाँ, ये कैलकुलेशन इस तरह से ही करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है भाई. अदरवाइज ऐसे सोच सकते थे, इनिशियल सैलरी ऑफ क्रिस इज 12,000 एंड एवरी टाइम दिस विल इंक्रीज बाई 20%, यानी 1.2 टाइम्स हो जाएगी. ओके, सो एन ईयर्स के बाद में 1.2 टू द पावर एन हो जाएगा. और डेविड का सैलरी कितना है, 18,000 टू स्टार्ट विथ. एवरी ईयर दिस इज इंक्रीजिंग बाई अ फैक्टर ऑफ 1.1, एंड ईयर्स के बाद में 1.1 टू द पावर एन हो जाएगा. और रेशियो दिस शुड बी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच हिज सैलरी विल बी ग्रेटर देन डेविड सैलरी. तो किसका सैलरी ज्यादा हो जाएगा डेविड की सैलरी से, तो दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है. तो बेसिकली दिस विल बी 2/3 इंटू 12/11 टू द पावर एन, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1. बट यहां से भी कोई इक्वेशन हमारा ईजी नहीं बनने वाला है. अल्टीमेटली क्वेश्चन तब भी इतना कम्बसम होगा बिकॉज टू द पावर 2 या 3 होता तो चल जाता, ईजी होता कैलकुलेशन, बट जब पावर 4 होगा 5 होगा तो कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल ही आएगा. सो दैट इज वाई दिस अप्रोच इज मच बेटर. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, इतने ही क्वेश्चंस थे. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑफिशियल मॉक, एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो डोंट बी हेजिटेंट एंड फील फ्री टू आस्क द डाउट एज वेल. एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, देन मेक श्योर द लाइक बटन एज वेल. That is all for this session. Bye bye. Take care and keep learning. And you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT, or you can join the Telegram channel Methodological. That is all. Bye bye. Keep learning.